The year was 2001. You know, my wife was actually planning to travel to the US because her sister had some health issues. And so we were looking around for a good air ticket. And so I went to our usual travel agent, and he offered me a Delhi, San Francisco, Delhi ticket at about 52,000 rupees in in 2001. And that was a lot of money at that stage. So I asked a few friends of mine in the airline business as to whether they knew of any airline or a travel agent who could offer me a better price. And there was a person I knew at British Airways who kind of suggested the name of a travel company called Le Travel World in Noida. So I also live in Noida. So I called up this travel company, and I spoke to a gentleman who said he was Sanjay Dang. So I spoke to him, and he took my travel details down, and he said, I'll get back to you in 10 minutes. So exactly in 10 minutes, I get a call back from him, and he says, Mr. Abraham, I can offer you a ticket for 40,000 rupees. This will be flying via Korea and entering the US through the West Coast. And do you have any problems with that? I said, no, absolutely no problems. 11,000 rupees is a good saving. And he also said that I will give you an additional stopover at New York. So I said, wow, that'd be great. So I bought the ticket, and then after my wife returned from the US, I went across to the travel company to make the payments. And when I met Mr. Dang, I realized that Mr. Dang, like me, had an eye problem. He was visually impaired, and I was very impressed by the way he ran his business. And he's been an entrepreneur for more than 30 years. And today we will have a chat with him and see what his journey was like and what we can learn from this journey of his. And I always believe that one of the opportunities available for people with disability, people who are blind, is entrepreneurship, where we can give people jobs rather than we looking for jobs. And I think the way going forward with government jobs likely to reduce, I think entrepreneurship is the way to go. And it's a very good time for us to have a chat with Sanjay. So, Sanjay, tell us a little bit about Le Travel World and about your business. Good evening, George, and good evening to all the listeners from across the country who are joining us today. So, George, the company is essentially a travel services enterprise. We manage travel service requirements of our clients. Most of it is airline travel, whether it is within the country or outside the country. Most of our customers are those who travel for business. There are also people who go for vacations or who are going to visit family members either within the country or outside the country. We also do hotels, we plan and manage holidays, we do cruise bookings, we process visas for our clients, we do their travel insurance. Essentially, we offer everything that a traveler would need to prepare for his travel and then execute it for him. Anything that needs to be done for people who travel within the country or outside the country, we are there to assist them. Like I said, most of our customers are enterprise level customers, which means these are business clients. But about 45% of our customers are professionals like lawyers or doctors or chartered accountants, or a lot of students use our services as well. And a lot of my clients are from the armed forces. We also have diplomats. We have clients from all over the country, and a few of them also from across the world. आपका आपको ये ट्रैवल बिजनेस करते हुए करीब 30 वर्ष हो गए हैं. तो बिल्कुल. तो हाउ डिड यू एक्चुअली चूज टू गेट इनटू ट्रैवल एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? सो जॉर्ज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. आज से तकरीबन 32 साल पहले जब मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, तो मैंने पहले अपनी कंपनी स्टार्ट करने से पहले 2 साल एक नई दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी थी जहाँ पे मैंने काम किया. तो जैसे आपने कहा कि आपके बहुत सारे जो इस समय यंग लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज वेबिनार, यू आर एनकरेजिंग पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, अपना बिजनेस स्टार्ट
करने का आप लोगों को आग्रह कर रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें, आपको उस बिजनेस का थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ या मैं क्या काम किस बिजनेस में आना चाह रही हूँ। जब तक आपको इस विषय में एटलीस्ट 100% तो कभी नहीं आपको आइडिया मिलेगा, लेकिन कम से कम 60-70% का आपको आइडिया होना चाहिए कि जिस बिजनेस में मैं एंटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके प्रोसेसेस क्या हैं, मेरा कंपटीशन क्या है, मेरे को जो सोर्सिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कस्टमर्स मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। पेमेंट्स इज़ अ वेरी मेजर इशू दैट वन नीड्स टू डील विद। तो पहले मैंने 2 साल एक ट्रैवल कंपनी में काम किया। मैं उस ट्रैवल एजेंसी में सबसे पहले पहुंच जाता था क्योंकि वो मेरे घर के बहुत नज़दीक थी और ऑफिस से सब लोग चले जाते थे। जब ऑफिस बंद होने वाला होता था उस समय मैं निकलता था। तो although the number of calendar years was just 2, but it must have been many man years that I worked there. I joined them initially just as because I had no experience. I just joined them by looking at a newspaper ad. I walked into the company. They were conducting interviews, and I was very eager to join the travel company because I had a fascination for destinations and for the world at large. तो उन्होंने मुझसे 10-15-20 मिनट इंटरव्यू ली, उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे और मैंने उनको हर प्रश्न का जवाब दिया। तो वो मुझसे बोलने लगे कि आपने कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं काम नहीं किया है, बट आई सिंस आई न्यू अ लॉट ऑफ व्हाट दे वर आस्किंग, they were quite surprised and I got the job. I was an assistant. My responsibility was to take phone calls, understand what the customer wanted, and then pass the call on to the expert for that particular field in the office. And then I used to hear what answers were being given to the questions that these people were asking. I was very inquisitive, and I kept listening to what people were talking, what recommendations they were giving, what advice they were giving, how they were handling these clients. And in a very short manner of time, I started handling most of these calls myself. Of course, I had to give the call on to the subject matter expert after a little while, but within a very short time, I was catering to most of these queries which came over the phone. When I left after about 2 years of working there, I had a team of 4 people under me, and I was the second most senior person within the company. Now, basically, एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा हाँ, कि your success in the travel company, within 2 years you had a team of 4 people working with you in the company that you were working for. What will you attribute? What qualities or what did you do that helped you to progress that quickly? I'm sure everybody who joined the company did not reach that stage so quickly. So what did you do spectacular or special which actually enabled you to reach that stage so quickly? So, George, I will tell you a very interesting story or a little bit about my background. After my 10th class examinations, I was recommended not to attend conventional school because that involved travel, and I had a problem with my eyes retina. I had successive retinal detachments, and the ophthalmologist recommended that I should not be doing too much of travel. That led me to do homeschooling. And during this period of time, I started listening to international radio. So I attended the University of Shortwave Radio, and I listened to a lot of global radio stations like the BBC, Voice of America, Deutsche Welle, Radio France International, Radio Australia, the Japanese radio system, radio stations from across the world. Now, these radio stations used to, as a part of their programming, they used to have a lot of destination information about the locations in their country. जो लोग उन देशों में जाते हैं वो क्या देखने के लिए वहाँ जाते हैं, उन देशों के कल्चर के बारे में, उनके करंट अफेयर्स के बारे में,
उन देशों के बारे में मुझे इतना ज्ञान मिला कि अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहा होता या कोई कॉलेज अटेंड कर रहा होता तो मुझे कभी नहीं मिलता। मैं क्योंकि ये विदेशी रेडियो स्टेशंस को सुनता था और वो मोस्टली अंग्रेजी में होते थे, तो जो अंग्रेजी जो बोलने का, जो भाषा को बोलने का जो एक तरीका है, वो भी ऑटोमेटिकली आ गया। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जब लोग फ़ोन करते थे और वो किसी जगह जाने के विषय में मुझसे बात करते थे, बिकॉज़ वो भी एक ट्रैवल एजेंसी थी, तो मुझे उन विषयों के बारे में बहुत कुछ जानकारी पहले से ही थी। सेकेंडली, मैं बचपन से बहुत ही इंक्विजिटिव नेचर का रहा हूँ। मुझे हर चीज़ में बहुत जिज्ञासा रहती है। आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन बाय नेचर। तो मुझे काफ़ी क्यूरोसिटी थी, तो जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करता था, वहाँ पे कोई भी गाइड बुक्स होती थी, कोई मैनुअल्स होते थे, कोई सर्कुलर्स आए हुए होते थे। मैं हर एक चीज़ को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता था और उसको समझने की कोशिश करता था। अपने जो मेरे सहकर्मी थे, जो मेरे कॉलीग्स थे, उनसे सबसे पूछता था। लोगों को लगता भी क्या था कि ये तो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बट that was what I think gave me a lot of insight into the operational aspects of the agency, and just regular general knowledge and general idea about the world made all the difference. So there were two things that you just said which are very important. One, you said you were very curious about things, you asked questions, you read. And the second thing you said, that you were passionate about gathering information, and you gathered a lot of information through radio. I would also like to ask you, you said your father was a dentist, and you were telling me that you would also read a lot of stuff that he got. Yeah, so I was, like I told you from the very beginning, I was extremely inquisitive and curious. So जब से मैं, चाहे मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था, तो उनके जो, so my father happens to be a dental surgeon from the Indian Army. He's retired as a brigadier from the army. तो हम लोग आर्मी का एक बहुत विशेष एक फीचर है कि आप 3 साल बाद या 2.5 साल बाद एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, क्योंकि आपकी पोस्टिंग आती है, ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं। तो वी kept moving from one part of the country to the other. So you always have to adapt to the new city that you go. You get new friends. You get into a new environment. आपको एकदम से एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और एक नया कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है। तो एक तो ये जो हर बार आप 2-3 साल बाद एक नए शहर में जाते हैं, तो उससे भी आपको मतलब एटलीस्ट अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। आपके जो साथ के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। तो और वैसे भी आर्मी का कल्चर एक बहुत ही डिसिप्लिन कल्चर है। और मुझे जैसे आपने बताया इंक्विजिटिवनेस या क्यूरियोसिटी, तो मैं सिंस माय वेरी चाइल्डहुड आई यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। So the minute the newspaper used to come in the morning, after my dad had a look at it, I used to, before I went off to school, I used to read the newspaper for at least an hour, reading everything that the newspaper had, whether it was sports or whether it was current affairs, politics. चाहे मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मैं उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ता था। You know, even tender notices or anything, classified advertisements, anything that the newspaper had, I would just read it. And I was so inquisitive. अगर मेरे सामने कोई जैम की बॉटल पड़ी है, तो मैं पढ़ूंगा कि ये कहाँ पे बना है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, इसमें क्या क्या डलता है। कोई मेडिसिन पड़ी हुई है, तो मुझे मेडिसिन की कोई बॉक्स है या कोई टैबलेट का स्ट्रिप है, तो मैं चाहे दूसरी या तीसरी में था, तो मुझे तब से पता था कि कंपनियां होती हैं जो ये सब चीज़ें बनाती हैं। इनके दफ्तर अलग, जो इनके रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, ये बड़े शहरों में होते हैं, और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एक बचपन से एक बहुत जिज्ञासा थी हर चीज़ को जानने में, समझने में। एंड इन माई लेटर ईयर्स आई थिंक दैट inquisitiveness or that curiosity has paid very rich dividends. यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो आप कह रहे थे कि आपके बचपन से आपको बहुत ही हाई मायोपिया था, और जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका आंखों का रोशनी कम होता गया, और अभी आप बिल्कुल पिछले
4-5 साल से आप लगभग कुछ देख ही नहीं सकते, क्या ये सही है? हाँ, तो जॉर्ज, मैं जब 1 साल का था तो जी। मुझे हाई मायोपिया डिटेक्ट हुआ था कि क्योंकि जब मैं कोई चीज़ उठाने लगता था तो जैसे कोई खिलौना है या कुछ खाने की चीज़ है, तो मेरे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि मैं शायद बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को मेरे नज़र में नहीं आ रही है, तो दे took me to a Parsi ophthalmologist in Bangalore who checked up, and I got a wonderful gift on my first birthday, my first pair of spectacles with -8. So मुझे I had myopia, high myopia from childbirth, which later we realized was what got converted into macular degeneration. जो आँख का मैकुलर रीजन होता है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गया था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली धीरे धीरे जो आपकी विजन है वो जाती रहती है, वो कम होती रहती है। पहले जो सेंट्रल विजन है वो चली जाती है, और अब तकरीबन 15 साल हो गए हैं दैट आई हैव लॉस्ट माय विजन। बट कंप्लीटली। आई थिंक दैट दीज आर गिफ्ट्स दैट गॉड गिव्स यू। आपको कभी भी इन चीज़ों को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, ये भी एक गिफ्ट है। जब मैं छोटा सा था और मैं स्पेक्स पहन के कहीं जाता था तो पीपल गेव मी स्पेशल अटेंशन। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उस अटेंशन को पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। ये जब मुझे मैकुलर डिजेनरेशन की वजह से मेरी आईसाइट कम होने लगी, तो एक किस्म से वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। उस समय मैंने अडेप्ट करना स्टार्ट किया, जैसे वॉइस रिकॉर्डर यूज़ करना स्टार्ट किया। उन दिनों कैलकुलेटर, एक स्पीकिंग कैलकुलेटर आता था, तो वो स्पीकिंग कैलकुलेटर यूज़ करना स्टार्ट किया। इसी प्रकार से कई सारे धीरे धीरे आप अडेप्ट करते हैं, और ईश्वर आपको बहुत कुछ देता है, कुछ चीज़ें नहीं भी देता, तो आई गेस यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ गिवन यू। उन चीज़ों के विषय में सोचें जो आपके पास हैं। ईश्वर ने मुझे एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली दी है। मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड immensely into what I am today. I have a great set of friends like yourselves. बहुत large client base है, people who come to us, loyal customers who have been with me and my company for the last 25 plus years. बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, तो आई थिंक कंप्लेन करने का कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपने 2-3 बार कहा कि आप काफ़ी कुछ पढ़ते थे, जैसे कि पैम्फलेट्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। क्या आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते थे, या आप स्मॉल प्रिंट पढ़ सकते थे, या सिर्फ हेडलाइंस देख सकते थे? नहीं, तो मैं शुरू में टिल माय 10th क्लास तक तो मैं ऑलमोस्ट ठीक ठाक पढ़ता था। इट इज़ अ मैटर ऑफ यू नो नॉर्मल डिजेनरेटिव प्रोसेस की जैसे जैसे आई की जो विजुअल कैलिबर है वो कम होता गया, तब उसके बाद में खाली जो बिग प्रिंट है वो नॉर्मली पढ़ता था, और जो छोटा सा प्रिंट होता था या फाइन प्रिंट होता था उसको या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ लेता था, या मैं किताब को बहुत नज़दीक से देखता था। देखने वालों को ये ज़रूर थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगता होगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आई यूज्ड टू keep reading and adapt, with various various visual devices. तो आपके पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि आपको शायद किसी स्पेशल स्कूल में भेजा जाए, या ये सोच में कभी आया? Really, since 10th class तक तो I actually was very privileged कि मैं मेरे शुरू के प्राइमरी ईयर्स जो थे वो मैं दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में इन वेरियस कैंटोनमेंट्स केंद्रीय विद्यालय जो हैं सेंट्रल स्कूल, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। माय टीचर्स, माय को-स्टूडेंट्स वर ऑल वेरी कोऑपरेटिव और वेरी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम इन अ एलियन एनवायरनमेंट। and I think it's only after 10th class that I had to do homeschooling, and it's all worked out very well. तो हम लोग अभी चलते हैं आपके खुद का जो कंपनी जो शुरू किया। आपने कहा कि आपने 2 साल किसी और ट्रैवल एजेंसी में काम किया, और उसके बाद आपने क्यों सोचा कि आप
आपको अपना कंपनी शुरू करना है और आपने ये कंपनी कैसे शुरू किया? तो जॉर्ज, मेरे फादर जिस समय हम लोग जब मैं काम कर रहा था उस समय ही वाज पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट, और जी। उस समय नॉर्थ ईस्ट में मिड 80s में एजिटेशन का माहौल था, तो वहाँ पे फैमिलीज वर नॉट परमिटेड एंड हेंस वी वर स्टेइंग इन दिल्ली। एंड जब उनका वहाँ से तबादला हो गया, ही गॉट पोस्टेड टू व्हाट वी कॉल इन द आर्मी टर्मिनोलॉजी एज अ फैमिली स्टेशन, जहाँ आपको अपनी फैमिलीज को साथ रखना अलाउड होता है। तो हमने उस समय डिसाइड किया कि ऐसे हर 2-3 साल में मूव करना इतना कन्वीनियंट नहीं रहता, क्योंकि आप तब तक मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर प्रोफेशनल कॉलेजेस में थे, यहाँ वो अपने 11th-12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के पीरियड में थे। तो हम नोएडा शिफ्ट किए। हमारा यहाँ पे नोएडा में इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो हम नोएडा आए, उस समय ये मैं 1987 की बात कर रहा हूँ। उस समय मैंने ये डिस्कवर किया कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने अपने फैक्ट्री सेटअप करी हुई थी। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज, उनके जो हेड ऑफिसेज होते थे वो दिल्ली में कनॉट प्लेस में या नेहरू प्लेस में या राजेंद्रा प्लेस में हुआ करते थे, लेकिन फैक्ट्रीज यहाँ होती थी, और उन फैक्ट्रीज में उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता था। और यहाँ पे कई सारे, क्योंकि रेजिडेंशियल सेक्टर्स डेवलप हो रहे थे, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सिंस आई न्यू दी प्रोसेसेस, मुझे पता था कि कैसे क्लाइंट्स को डील किया जाता है। मेरे दो साल जब मैंने काम किया, तो जो एयरलाइंस थी, जो बड़ी ट्रैवल कंपनीज थी, वहाँ पे काफ़ी मित्र भी बन गए। तो मुझे लगा कि लेट मी start off with my own enterprise, and that is the time when I started up. Startup नाम का जो आजकल एक बहुत बड़ा क्रेज है, या हम लोग आजकल जब नई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्टअप कल्चर कहते हैं। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक स्टार्टअप सेटअप कर रहा हूँ। वो टर्म शायद तब कॉइन नहीं हुआ था, तब स्टार्टअप की उस वक्त मिस्टर नरेंद्र मोदी थे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मैंने अपने घर के गैराज में, तो जॉर्ज आपको शायद पता होगा कि अमेजॉन के जेफ बेजोस ने, और डेल कंप्यूटर्स के माइकल डेल ने, एप्पल के स्टीव जॉब्स ने, इन सब, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने, इन सब ने अपनी जब कंपनियां स्टार्ट करी तो उन्होंने अपने घर के गैराज से स्टार्ट करी। तो उस समय मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन मैंने भी अपने घर के गैराज से अपना दफ्तर पहला स्टार्ट किया, क्योंकि आप नया नया कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको एक कमर्शियल लोकेशन लेके और वहाँ पे स्टार्ट करना जो है वो शुरू में यू नीड कैपिटल, यू नीड सपोर्ट सिस्टम्स, यू नीड एम्प्लॉयज़। तो चूंकि मैं एक नया काम प्रारंभ कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपने घर के गैराज से स्टार्ट करूं। तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर वो शी इज़ एम फार्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो उस समय पढ़ती थी, तो जब कॉलेज से वापस आती थी तो वो मेरे साथ मेरा सहयोग देती थी। शी यूज्ड टू assist me with my work. So let me ask you a question here. It's one thing for you to start a business. In your business, you depend on others to come and approach you for tickets and travel-related challenges. So how did you get your clientele? Meaning, it's sitting in a garage in Noida, getting a clientele is not very easy. जॉर्ज, कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं आसान नहीं होता है, लेकिन एक वो उम्र थी, मैं उस समय 20 या 21 साल का रहा हूँगा, और बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, या पॉजिटिव नेचर का एक मैं यंगस्टर था, तो उस समय मेरे पास जो मुझे सबसे कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नज़र आया, मुझे लगा कि एडवर्टाइज करना चाहिए। तो मैंने एडवर्टाइजिंग के लिए चेक किया, तो पता चला कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये जो अखबार होते हैं, इनमें जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं ये बहुत ही कॉस्टली होता है। ये जो एडवर्टाइजिंग है बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। तो कई हज़ारों की एक ऐड हुआ करती थी, और मुझे पता चला कि कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स होते हैं जो कि अपने नेबरहुड में ये फ्री में न्यूज़पेपर्स के साथ में ये
कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स वितरित किए जाते हैं, और इनकी जो एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो साउथ दिल्ली जो कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका उस समय था, अभी भी है, मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे लगा कि टारगेट ऑडियंस वहाँ की जो लोग विदेश जाते हैं, वहाँ से बहुत लोग विदेश जाया करते थे। तो मैंने एक नेबरहुड स्टार नाम का एक वीकेंड पे आया करता था, ये फ्री न्यूज़पेपर साउथ दिल्ली की कॉलोनीज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसमें मैंने एक क्लासिफाइड ऐड देना स्टार्ट किया। और नोएडा में एक नोएडा बाजार नाम का एक फ्री शीटर या जो ऐड शीटर होता है, ये आया करता था, तो मैंने उसमें भी ऐड देना स्टार्ट किया। तो जब कोई फ़ोन करता था तो आई यूज्ड टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि मैं नोएडा में बैठा हुआ था, जो फ़ोन कर रहे थे वो कोई डिफेंस कॉलोनी से कॉल कर रहा था, ग्रेटर कैलाश से कॉल कर रहा था, नेहरू प्लेस से कॉल कर रहा था, उनके लिए संभव नहीं था कि वो मेरे पास आएँ क्योंकि डिस्टेंस था। तो मैं उनको टेलीफोन पे ही सारी जानकारी दे दिया करता था। जबकि उस समय, हम आज से 30 साल 32 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी में फ़ोन करते और कहते कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है या सिंगापुर जाना है या हांगकांग जाना है, तो वो कहते कि जी ठीक है, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। अब आप अब नहीं चाहेंगे कि धूप में, गर्मी में या किसी भी मौसम में ट्रैवल करके आप किसी के दफ्तर जाएं जस्ट टू मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो जब मुझे लोग फोन करते थे, मैं उनको उस कॉल पे जितनी भी जानकारी मैं दे सकता था, irrespective of the fact that whether they would come to me or not come to me, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए मैं सारी जानकारी उनको फोन पे दे दिया करता था। When people used to call me, and they used to find that this gentleman is giving us all the information, and जैसे मैंने आपसे वो गॉड गिफ्ट की बात करी, तो मुझे बाद में मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने बोला कि आपकी आवाज़ में भी एक आपको भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है, तो आप जब बात करते हैं तो बड़ी कन्विंसिंग लगती है, आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है, क्योंकि मैं जो भी जानकारी दे रहा होता था, मुझे उस चीज़ के विषय में पूरी जानकारी होती थी, पूरी नॉलेज होती थी, और मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर ये मेरे दफ्तर में आएंगे तो तभी मैं इनको ये जानकारी दूं। मैं उनको सारी जानकारी पहले ही दे दिया करता था। तो उसमें मेरा जो सक्सेस रेट है 10 में से 4, 10 में से 5, विच इज़ अ वेरी हाई सक्सेस रेट, वो होना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद तो जो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है वो रेकमेंड करता है अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो उनके यार दोस्त होते हैं उनको बताते हैं। तो आज तक it's been 30 plus years and I don't have a team of marketing or sales people in the company. We are 31 people today, George. All of my team members have contributed immensely to the growth and success of the company. उस समय जब हमने स्टार्ट किया तो केवल 1 या 2 जिन्हें हम रनर बॉयज कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो जाके और टिकट डिलीवर करते थे और पेमेंट लेते थे, तो वहाँ से प्रारंभ किया। एंड आई फाइंड दैट if you're good to your customers will be good to you. They will recommend you, they will be your brand ambassadors, they will get you business with word of mouth recommendations. That's the best way and the most cost effective way to get business. So I have a question here now. One group of people you interact with is the customers, but you also, in those days, like today, you have computer terminals in your office and you have all the information on the computer. So the question now I would like to ask you is, like in those days, how did you actually start engaging with the various flying various airlines? Because you had KLM, you had Japan Airlines, you had Lufthansa, you had Indian Airlines, Air India, and Aeroflot and all that, Alitalia, and so on. So how did you actually you were alone in the garage in Noida, and how did you actually kind of engage with them? So George, आप लोगों को मालूम है आजकल जितने भी हमारे सब युवा साथी हैं जो हमारे मैक्सिमम इस समय पार्टिसिपेंट्स हैं, they're all young people. They all have discovered technology as to be the only way or the best way to access the world. तो उस समय मैंने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। क्या होता था कि एयरलाइन के अंदर 3 या 4 टेलीफोन लाइंस होती थी और पूरे शहर के लोग उस एयरलाइन को संपर्क करने का प्रयास कर रहे होते थे। मैंने इन्वेस्ट किया एक फैक्स मशीन में,
तो मैं जो रिजर्वेशन होती थी या जो मेरी इंक्वायरी होती थी मैं उसको फैक्स पे आई यूज टू टाइप इट आउट एंड सेंड द एयरलाइन अ फैक्स। उसमें क्या होता था, ना तो मुझे वेट करना पड़ता था कि कब मुझे उनका फ़ोन लाइन मिलेगा और कब मैं उनसे बात कर पाऊंगा। तो मेरी जैसे ही फैक्स क्वेरी उनके पास जाती थी, एक तो उनको लगता था ये काफ़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है जो फैक्स पे इंक्वायरी भेज रही है, और वो लोग इमीडिएटली इंफॉर्मेशन को जान करके और रिजर्वेशन क्रिएट करके या जो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी उसका नोटिफिकेशन या सर्कुलर मुझे वापस फैक्स कर दिया करते थे या वापस कॉल कर दिया करते थे। अगर कोई बात ऐसी है कि जो कि फोन नहीं मिल रहा है एंड आई नीड टू स्पीक टू समवन, so I would just send a fax saying, kind attention, so and so, please call me back, truly appreciate it। और जैसे ही वो लोग फ्री होते थे या जैसे ही उनको मैसेज मिलता था वो मुझे कॉल कर दिया करते थे। Similarly, I also at that point in time I invested in a Panasonic automatic telephone dialing system जिसके अंदर रीडायल का प्राविधान होता था। 32 साल पहले ये चीज़ें they were not very common, so it was so I used to put the call on an auto dial and it used to keep dialing on its own. So these were mechanisms that I had developed to ensure that I gave a professional image to the airline community, and also when they returned the reservation to me, everything was crystal clear। जब आप फोन पे कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आप जानकारी दे रहे हैं उसमें कोई त्रुटि आ जाए, उसमें कोई एरर आ जाए, या जो आपको फ़ोन पे जानकारी दी जा रही है उसमें कोई मिसमैच या मिसकम्युनिकेशन हो जाए। बट द रिटन वर्ड ऑब्वियसली is the most effective way of communicating. So the fax machine, which is today more or less an extinct form of communication, was my savior. You were also kind of telling me that while you were at the travel agency where you were working, you had also made some relationships with, and you were telling me about some gift you had one of God's gifts to me, and I'm sure to a lot of our friends who are visually impaired, is the my sense of hearing was probably much better than the average person. My memory was always a little higher than the average person, because I guess we need to probably depend more on listening, and we need to probably remember things more than an average person would have to. I had this God gift of रिकलेक्शन ऑफ वॉइसेस। सो मैंने अगर एक बार जॉर्ज को फ़ोन किया या जॉर्ज ने मुझे एक बार फ़ोन किया तो उसका वॉइस इम्प्रिंट मेरे मेमोरी में आ जाता था। तो जब भी मैं किसी को कॉल करता था या मुझे कोई कॉल करता था तो मुझे एकदम से पता चल जाता था कि ये कौन सज्जन है, ये कौन महिला है। तो जब आप एयरलाइन के ऑफिस में कॉल करते हो, किसी ने फ़ोन उठाया तो जैसे उनके पास तो दिन में सैकड़ों कॉल आते हैं और लोग उनसे जब बात करते हैं तो जैसे एक नॉन इंडिविजुअलिस्टिक कॉल होती है। आप जानकारी मांग रहे हैं, आपको जानकारी मिल गई, आपने थैंक यू कहा, फ़ोन रख दिया। जब मैं फ़ोन करता था और दूसरी लाइन पे किसी ने फ़ोन उठाया, तो जैसे विवेक ने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चल जाता था कि ये विवेक है। अब इन एयरलाइंस में 12, 15, 20 जने होते हैं काम करने वाले, और तो जैसे ही विवेक ने फ़ोन उठाया या जैसे ही तमन्ना ने फ़ोन उठाया तो मैं एकदम से उनके नाम से उनको बुलाता था। आई शुड से गुड आफ्टरनून विवेक एंड हाउ आर यू टुडे। तो विवेक बिल्कुल उनको ये बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट सा लगता था कि अरे इस इंसान ने मुझे मेरे नाम बताए बगैर पहचान लिया। एंड that created a bond or a relationship which has lasted even till today. And when a customer called me, let's say he called me once and he said, let's say he is Professor Balraj, and then let's say he called after 15 days, क्योंकि लोग पहले इंक्वायरी करते हैं, जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में जब वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं तो वो आपसे दोबारा कॉल करेंगे। तो 10, 12, 15 दिन बाद भी कॉल करते थे, तो जैसे वो हेलो बोलते थे मैं बोलता था नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपके क्या हाल हैं। तो इससे एक बहुत डीप कनेक्ट क्रिएट हो जाता था। एंड दैट आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ गॉड्स गिफ्ट्स टू मी, which really helped me in
developing these relationships, and these relationships have carried on even till today. You know, Sanjay, if you had not gotten to travel, you would have made a very good public relations man. So going on, you were telling me that initially, you know, you had the business with a lot of students from people who are traveling to the US and UK and Australia and so on. How did you start building it up into you know, you have a lot of corporate clients also today. Right. So can you tell us a little bit about how you moved from the garage to an office, and the client character also changed? Right. So George, it is very important for anybody who wants to get into business or anybody who's in business to create what are called niche segments for them. आपको अपनी the business arena is a big ocean. Yeah. तो आपको एक स्पेशलाइजेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और आपको उस स्पेशलाइजेशन पे कोशिश करनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक किस्म से स्पेशलाइजेशन करें. अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप शुरू से प्लान करते हैं. ये कई बार ऐसा होता है कि जब आप वेरियस बिजनेस इज एक्सपेरिमेंटेशन, तो जब आप अपने क्लाइंट्स को कैटर कर रहे होते हैं तो आपको लगेगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, या जिनको मैं अच्छी तरीके से एड्रेस कर पा रहा हूँ, तो वो आपकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बन जाएगी. और आपको प्रयास ये करना है कि उस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को अगर ज़्यादा आप फोकस करेंगे तो मे बी योर सक्सेस लेवल्स विल बी हायर. अब जब ये साउथ दिल्ली में जो ये न्यूज़पेपर जाया करता था, तो वो साउथ दिल्ली में आईआईटी दिल्ली है, और उन दिनों जितने भी आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे वो अमेरिका या यूके हायर एजुकेशन के लिए जाया करते थे. तो ऐसे ही मेरे एक कस्टमर जिनके यहाँ पे ये नेबरहुड स्टार नाम का न्यूज़पेपर पहुँचा, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ आया हुआ था जो कि एक स्टूडेंट था, और उसने वो ऐड देखी जिसमें, तो इस ऐड में जॉर्ज मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक छोटी सी ऐड डालता था. उसमें लिखता था गेट द बेस्ट फेयर्स ऑन वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस, एंड आई यूज्ड टू से गिव द वेरी अट्रैक्टिव फेयर. तो अब जैसे आपको याद है, आपने 51,000 रुपये या 52,000 रुपये की सैन फ्रांसिस्को की टिकट आपको बताई गई थी आपके ट्रैवल एजेंट द्वारा, लेकिन मैंने आपको 40,000 की टिकट दी. तो करेक्ट, क्या होता है कि हर एयरलाइन का अलग फेयर होता है. अब हम जो फेयर उस एड में डालते थे वो नेचुरली जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव या सबसे कम फेयर होता था, हम उस शहर के लिए वो फेयर डालते थे. तो हम ऐसे लिखते थे न्यूयॉर्क 12,888, लंदन 8,999, हांगकॉन्ग 6,555, दुबई 2,999. तो जो भी उस पर्टिकुलर सिटी के लिए जिस भी एयरलाइन का उस समय मोस्ट कॉम्पिटिटिव फेयर होता था वो फेयर हम लिख देते थे. तो दैट यूज्ड टू बी अ कैची फिगर फॉर समबडी, और वो देख के उनको लगता था अरे ये तो बड़ा अफोर्डेबल प्राइस है. एंड सो दिस यंग जेंटलमैन saw this ad and called me, and he asked me about fares for a place where he was going to join university. इस शहर को नॉक्सविल कहते हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कनॉक्सविले जाने की टिकट चाहिए. तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ये आईआईटी का स्टूडेंट है और इसको नॉक्सविल जो कि टेनेसी में वहाँ जाना है, और ये कनॉक्सविले बोल रहा है. तो मैंने उनको बोला कि आपका क्या मतलब, नॉक्सविल तो नहीं जाना आपने? तो वो सज्जन बोलते कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो मैंने बोला हाँ, मेरा नाम संजय डैंग है. तो कहते हैं मिस्टर डैंग, आप पहले व्यक्ति हैं, आज मैं दिन में सुबह से 12 या 15 जगह कॉल कर चुका हूँ, और किसी को नॉक्सविल, क्योंकि नॉक्सविल के स्पेलिंग KNOXVILLE होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आप उसको नॉक्सविल कहते हैं. वो के भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है. तो कहता है मैं जिस भी ट्रैवल एजेंट को बोलता था कि मुझे नॉक्सविल जाना है, तो किसी ने वो नाम ही नहीं सुना हुआ करता था. फिर मैं उनको स्पेल आउट करता था, तब वो अपनी फेयर चार्ट में से मुझे देख के बताते थे. और मुझे लगता था कि अगर इस इंसान को यही नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है, तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. बट यूर द फर्स्ट पर्सन हु नोज वॉट नॉक्सविल इज, एंड उसने मुझे पूरे ही पूछ लिया कि क्या मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी जाना है. तो आपको तो ये सब पहले से ही पता है, तो मुझे अब और किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है. आप ये मेरी डेट्स हैं, मुझे बताइए क्या ऑप्शंस हैं, और आप मेरी टिकट बना दीजिए.
वो वापस अपने हॉस्टल पहुंचा, उसने अपने बाकी फ्रेंड्स को बताया, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग बिजनेस फ्रॉम these young students at IIT Delhi. That and then these usually these IITians are a big community, and they started telling their other friends. And like I said, word of mouth is all that you need. उन्होंने एक दोस्त ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मेरे कुछ इन लोगों ने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो वहाँ से कस्टमर्स आने स्टार्ट हुए, उनके आईआईटी कानपुर में, आईआईटी मद्रास में. तो इससे एक झड़ी सी लग गई, एक श्रृंखला बन गई, एंड आई गॉट इनटू स्टूडेंट्स ट्रैवल इन अ बिग वे. Also airlines kind of got to see that I was giving a lot of student bookings. तो एयरलाइंस ने मुझे बोला कि हम लोगों के पास स्पेशल स्टूडेंट फेयर्स होते हैं, और फिर उन्होंने मुझे वो स्पेशल स्टूडेंट फेयर्स देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारे पास बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, तो वी वर एलिजिबल फॉर दो स्टूडेंट फेयर्स. सो दैट निश ऑफ द स्टूडेंट्स मार्केट वाज व्हाट गॉट डेवलप्ड. ये बात अलग है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ऑनलाइन इज़ द वे टू गो, और वो ऑनलाइन टिकट्स खरीदने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं. लेकिन ये मेरा एक जो शुरू का एक्सपेरिमेंट था, और ये जो मैंने एक नीश पकड़ा, उसके बाद में मैंने ये पाया कि जो स्टूडेंट्स थे, जब वो एक बार गए विदेश, तो वो उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएट किया और उनके विवाह हुए, तो उनकी वाइफ्स भी गई, फिर दे हैड चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स गए, उनके पेरेंट्स इन लॉ गए, उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स गए. तो एक सीरीज ऑफ कस्टमर्स क्रिएट हो गई. इन द सेम फॉर्म एंड मैनर उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स जाया करते थे यूनाइटेड स्टेट्स. तो वो लोग USMLE नाम का एक एग्ज़ाम होता था, वो एग्ज़ाम देते थे. सो all these medical colleges, they got to know that, you know, get in touch with Sanjay Dang and he'll get you good prizes. So me and my team, तब तक the team had also grown. जब आप business में आगे बढ़ते हैं, business में growth होती है, तो you also add more people, and the team grew. तो ये सफ़र इस तरह प्रारंभ हुआ. और like I said, सबको एक niche, एक particular market segment identify कर लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उसमें स्पेशलाइज करें. So tell us the story of, you were telling me the story of how you bagged the Western Electronics account. How did that happen? And just maybe quickly tell us the story. आज की डेट में तो हमारे बहुत सारे लार्ज कस्टमर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका हम काम करते हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं. मैं पर्सनली मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनको देयर ओनर ड्रिवन कंपनीज, वहाँ डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान होती है, और उनको रिस्पेक्ट भी है कि आप उनके लिए क्या काम कर रहे हैं. बट मेरा एक बहुत अनूठा और एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा जब मैंने अपनी कंपनी नई स्टार्ट ही करी हुई थी, कुछ 2-3 साल ही हुए होंगे. एक दिन मुझे एक फ़ोन आया एक लेडी का, जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बॉम्बे से हांगकांग जाने के लिए जो फ़्लाइट्स हैं उनके टाइमिंग्स और क्या किराए होंगे उसकी जानकारी चाहिए. तो मैंने उनको मैडम को फ़्लाइट्स बताई. तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बॉम्बे हांगकांग तो आपने बता दिया, अब हांगकांग से बॉम्बे की क्या फ़्लाइट्स होती हैं. तो मैंने उनको वो भी बता दी. कहने ये तो बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, तो मैं लिख लेती हूँ. मैंने कहा नहीं मैडम, आप लिखने का कष्ट मत करें, मैं आपको ये सारी जानकारी एक फैक्स पे भेज देता हूँ. एनवायरनमेंट से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़ा सा दफ्तर है और ये लेडी जो हैं किसी कंपनी से बात कर रही हैं. तो मैंने उनको जल्द ही एक शीट के ऊपर सारी जो फ़्लाइट्स जाने वाली और आने वाली फ़्लाइट्स थी वो सारी लिख के और उनको फैक्स कर दी. उसी फैक्स पे मैंने उनके फेयर्स भी लिख दिए, और मैंने साथ साथ ये भी लिख दिया कि यदि आप बॉम्बे हांगकांग बॉम्बे टिकट लेती हैं, और यदि जिन्होंने ट्रैवल करना है वो दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, तो दिल्ली बॉम्बे दिल्ली टिकट इसी फेयर में आपको विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट मिल जाएगी. जैसे ही ये फैक्स मेरा उनके पास पहुंचा, तो वो उन्होंने मुझे वापस कॉल किया और बोलने लगी कि आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, जो ऐड में दिया हुआ यही एड्रेस है. मैंने कहा हाँ जी मैडम, मेरा यही एड्रेस है. तो कहने लगी आप कब तक ऑफिस में होते हैं. तो मैंने उनको बताया कि मैं 6-6:30 बजे तक ऑफिस में होता हूँ. तो ये तो मेरा घर था, और I used to sit in the office till about 6:30, 7. Although offices उन दिनों में 5:30 बजे बंद हो जाया करते थे,
मैं जब तक मेरा पास कुछ करने को काम होता था मैं बैठा रहता था। अब शाम को कुछ 4 साढ़े 4 बजे एक सज्जन, एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी आई और मेरे दफ्तर के बाहर खड़ी हो गई। एक सज्जन उसमें से निकल के आए और वो बोलने लगे कि कार में मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो मिस्टर संजय डैंग से मिलना चाहते हैं, आप बता सकते हैं ये वो कहाँ मिलेंगे? तो मैंने बोला हाँ मेरा ही नाम संजय डैंग है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। और उसके बाद में गाड़ी से निकल के एक सज्जन आए, आके मेरे पास बैठे और कहने लगे कि ये फैक्स मेरी सेक्रेटरी ने मुझे दिया है, आपने हांगकांग जाने के लिए ये डिटेल्स भेजी हैं और मुझे कुछ जानकारी और चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे? तो मैंने कहा श्योर, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आप फ़ोन पे ही मुझसे बात कर लेते। तो कहने लगे नहीं, मुझे लगा कि मैं आपसे पर्सनली मिल लेता हूँ। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। वो विजिटिंग कार्ड मैंने देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। उनका नाम ज्ञान बछानी था और वो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो उस समय इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी, वेस्टर्न का टीवी, वेस्टर्न के ऑडियो इक्विपमेंट, उस समय वेस्टर्न एक बहुत बड़ा नाम था। तो वो उस कंपनी के मालिक थे और उनसे उन्होंने कहा कि ये दिल्ली बॉम्बे दिल्ली किराया आप टिकट के साथ में दे रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे आज तक पता नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ, वो एयरलाइन जो है वो दिल्ली बॉम्बे आपको एज अ पार्ट ऑफ द फेयर देती है, क्योंकि वो एयरलाइन दिल्ली से ऑपरेट नहीं करती। तो वो मेरे साथ तकरीबन 40-45 मिनट बैठे रहे। एक वर्ल्ड एयरवेज गाइड नाम का एक स्केड्यूल ऑफ ग्लोबल एयरलाइंस हुआ करता था। तब तो इंटरनेट का युग था नहीं, तो एयरलाइंस अपने जो टाइम टेबल्स थे उनको एक संयुक्त रूप में एक कंपनी एबीसी नाम से एक 2 वॉल्यूम का एक बहुत मोटा सा एक स्केड्यूल होता था। तो उसमें से देख के उनको हांगकांग से आगे ताइपे, सियोल और जापान वगैरह जाना था। तो उन्होंने मेरे साथ बैठ के पूरी आइटनरी बनाई, फेयर्स वेयर्स मैंने उनको ऑप्शंस दिए और तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं अपनी अपॉइंटमेंट सेटअप करके और कल मेरी सेक्रेटरी आपको बुकिंग्स दे देंगी। तो इस छोटी सी मुलाकात से और उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट मुझसे बनवाई। उन दिनों फर्स्ट क्लास ट्रैवल करने वाले लोग बहुत ही कम हुआ करते थे। एंड विद दिस चांस एनकाउंटर विद दिस जेंटलमैन, and you know, he was so impressed or he was so satisfied with my performance that he gave a recommendation of my company to other group companies of the Western group, to his friends and other members of his family, and that gave me that confidence to be able to enter what is called the business travel market। मतलब जो corporate travelers होते हैं, जो बड़ी companies होती हैं, तो मुझे लगा कि अरे अगर मैं वेस्टर्न का काम कर सकता हूँ तो मैं किसी का भी कर सकता हूँ। तो उससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला जॉर्ज, एंड that journey has carried on ever since with So his... I have a question here. We are running out of time, but I have one or two quick questions, and I'd like to ask them. So Mr. Vachani actually saw you operating. They obviously saw you holding the directory close to your eyes, or you might have been using your magnifying glasses. I mean, we often, when we are seen at our weakest, we often think that people have a negative response to it. How did obviously Mr. Vachani thought otherwise? Yeah, so George, Mr. Vachani ने उस समय मुझे कुछ नहीं कहा। Maybe that was his greatness, और इतने बड़ी एम्पायर चलाने वाले लोग जो होते हैं वो उनके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, तभी वो इतने बड़े बनते हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ नहीं कहा, बट उनको पता चला, उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन पे कहा कि आप, मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि आपको इतना देखने में असुविधा होती है, फिर भी आप ने ये सारा इतने अच्छी से मुझे अटेंड किया और जानकारी मुझे दी सारी। और उस वजह से शायद उन्होंने अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे रेकमेंड किया। एंड आई थिंक वी ऑल शुड ट्राई टू बिल्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ्स एंड प्रोबब्ली जस्ट ट्राई टू इग्नोर आवर वीकनेसेस। Okay, कोई शख्स नहीं है जिसके अंदर वीकनेसेस ना हो। Yeah, look at what you have rather than what you don't have. Absolutely. And okay, I just want to ask you, you know, you built up your company, and slowly I've noticed that as you grew bigger, your family members also got jobs in your company. Rather than, you said your brother was training to be a dentist, your sister was training to be a pharmacist, but they all ended up joining your company. How did that happen? It is a matter of
I would say, great family pride for us that all of us are working together. इतने साल हो गए हैं. My father left the Indian Army to be able to join me and assist me in running the operations of the company. He takes care of the administrative and the financial aspects since I was a youngster, and it's very important कि कुछ grey hair हो आपकी company में जो आपको sane advice दे सकें. My father joined me. My sister and brother Sunil is a dental surgeon by profession. Poonam, my sister, did her master's in pharmaceuticals, dropped the university. But because in those days, it was the travel business was very intensive business. It requires even today. आप लोग अगर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में मिल के जुल के अगर कुछ एक एंटरप्राइज रन कर सकें तो वो तो बहुत ही बढ़िया होता है. तो both my siblings and my parents, my mother has a lot of contribution all these years. She has been very instrumental in हर काम में बाधाएं आती हैं. It is never a smooth sailing, but she's always been very, very supportive. And all these years, both my parents have put in the family's finances for, क्योंकि पैसा चाहिए होता है कोई भी बिजनेस रन करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए. My father put in his life's savings, and today we have offices in Noida. We have a commercial building here. Connaught Place में हमारा दिल्ली में ऑफिस है. तो ये सब शुरू में तभी बन पाया because of family support. And of course, I have a dedicated team of, like I said, staff members and professionals who've been working with the company. और उन सब की बदौलत हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं. But एक तो ईश्वर और एक जॉर्ज, I also think and मेरा ये विश्वास है कि the power or the strength of collective good wishes, जब आपके विषय में बहुत लोग अच्छा सोचते हैं तो वो power of collective positivity generate होती है और you are able to succeed in whatever you set out to do, because a lot of people think good about you, goodness will emerge. Okay, so there are some, these are all profound philosophical thoughts which are also real, but I would like to also ask my last question. In the conversation, we have realized that as far as you are concerned, number one, you had a passion for knowledge, and as a result, your awareness of the travel industry is fantastic, meaning to the extent that I've come to your office to meet you a couple of times, and I noticed that most of your clients actually would like to talk to you because they believe that you have the actual information and they trust your information. Number two, I've noticed that you have a tremendous ability to build relationships. And number three, I've noticed that you are kind of all-in-one kind of thing, in the sense that your company offers all travel solutions. Now, as an individual, as a businessman, as an entrepreneur, if you were to tell our audience both चार qualities जो आपको ये entrepreneur बनाया है, successful बनाया है, संजय डैंग, वो चार characteristics या qualities क्या होगा? So George, there is no substitute for hard work. आप किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको hard work is, and continuous hard work is the cornerstone, is the foundation of anything that you do in life. तो मैं from the very beginning, क्योंकि हर चीज़ जो knowledge है, जो जानकारी है, जो आपके पास में कोई भी कस्टमर आ रहा है, आजकल के इंफॉर्मेशन एज में जहां हर जानकारी बहुत आसानी से एक गूगल सर्च से मिल जाती है, तो आपके पास जो आ रहा है उसका कोई कारण होगा. वो कारण ये है कि आपको वो इंफॉर्मेशन जो है उसको एनालाइज करके, और क्या इंफॉर्मेशन सही है, कितनी सही है, इस चीज़ को आपको अपने कस्टमर को बताना है.
इसके लिए आपको खुद बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको खुद बहुत जानकारी एकत्र करनी पड़ती है, और ये जानकारी लेने के लिए of course I rely on a lot of news sources. I also airlines में जो notifications आती रहती हैं, circulars आते हैं, चाहे वो होटल कंपनीज हों, टूर ऑपरेटर्स हों, इंश्योरेंस कंपनीज हों, जितने भी हमारे बिजनेस अलायंसेस हैं, इतनी सारी कंपनीज के साथ में उनके जो कम्युनिकेशन आती है, वो मैं कंप्लीट डिटेल में, ये नहीं कि मैं सोचूं कि ये काम मैं किसी और को दे दूं, तो ऑफ कोर्स कार्य तो सब मेरे कॉलीग्स करते हैं, मेरे टीम है वो सब करते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी जानकारी मुझे भी होनी आवश्यक है, मैंडेटरी है. So one is that you have to go through all the knowledge or all the information from various resources that you can get. And the other factor is this factor of trust and confidence with your customers. ये जो relationships हैं जॉर्ज, ये trust की वजह से बनती हैं. आपका कस्टमर आपके पास तभी आएगा जब आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसके साथ में इफ यू फेयर टू योर क्लाइंट्स एंड जनरेट दैट ट्रस्ट कि वो बार बार आपके पास ही आए. तो ये एक क्योंकि बिजनेस में आप हर दिन एक नए कस्टमर के बेस पे अपना बिजनेस नहीं चला सकते. आपके पास रिपीट कस्टमर्स बहुत आवश्यक हैं किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए. हम लोग कभी भी रोज कुआं खोद के रोज पानी निकाल के पियेंगे तो जीवन नहीं चलेगा. तो रिपीट कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिपीट कस्टमर्स विल कम टू यू if you're fair to your customers, and this personal connect that I have to keep with my clients is very taxing. ये काफ़ी इसमें एफर्ट लगता है, और बहुत आसान होता है कि मैं कह दूं कि जी आपको जानकारी मेरे कॉलीग दे देंगे. मेरे कॉलीग्स ही जानकारी देते हैं, बट उन कस्टमर्स के साथ बात करना, उनको उनको क्या चाहिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और फिर बाकी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो फिर आगे जानकारी उनको देते हैं, उनका प्रोसेसिंग करते हैं उनके रिक्वेस्ट की. सिमिलरली विद एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स, होटल कंपनीज, इन सब के साथ मेरी पर्सनल कोऑर्डिनेशन रैपोर्ट काफ़ी सालों से चली आ रही है. इसको आपको इन सब के साथ यू हैव टू बी इन टच विद देम, इंटरेक्ट विद देम रेगुलरली. We are also a part of a global travel network called Uniglobe. तो जैसे आपने देखा होगा, जब हमारी जो वेबसाइट है वो uniglobeltw.com है, तो ये Uniglobe नाम का एक इंटरनेशनल ट्रैवल नेटवर्क है. तो उनसे भी हमें दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रैवल स्फेयर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, उसकी जानकारी मिलती रहती है. तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है उसको आप you go through it, and then keep the one that is pertinent to you in your memory bank, in your mind and your brain, and carry on with your business. This is important. What I would recommend to all the young friends who are on this webinar today and are looking for key factors as to how to develop business, तो आपको out of the box सोचना पड़ेगा. जॉर्ज, मुझे कभी कभी ये लगता है कि सिंस वन इज नॉट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड लुकिंग एट आंसर्स फ्रॉम गूगल, क्योंकि क्या होता है यूजुअली कि जब एक साइटेड पर्सन को कुछ जानकारी चाहिए, वो बस गूगल सर्च करेगा, सामने जो आया, या जैसे जो कंप्यूटर टर्मिनल पे बैठा हुआ है उसके सामने जो जानकारी आई, बस वो दैट इज अबाउट इट ऑल. लेकिन हमको क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, हम तो समटाइम्स दैट टर्न्स आउट टू बी एन एडवांटेज. सो डोंट थिंक दैट यू नो not having your vision is a big disadvantage. It is also an advantage because you also have to rely on your brain and on your thinking skills more, and maybe that at times comes out to be an advantage. और दूसरी बात ये कि आप जैसे आजकल कई सारे इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर सो मेनी न्यूअर वेज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग नॉलेज. तो जैसे
पॉडकास्ट्स हैं, आप लोग अपने एप्पल आईफोन पे या आपके आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पॉडकास्ट्स हैं, तो दुनिया जहान की जानकारी इन पॉडकास्ट से आपको मिलती है। तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग in the world, whether it's in science, whether it's in technology, business affairs, current affairs, जो कुछ भी दुनिया में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग सक्सेसफुल बनने के लिए it is very important to keep yourselves updated with what is happening in the world. Well, Sanjay, it's been fantastic speaking to you, and your journey as a single person starting business in a garage in Noida to setting up a company which has operations not only in Delhi and Noida, but I believe you also have representatives in the United States, because I keep seeing a US number in your visiting card and so on. And you have more than 30 employees who report to you, and you've also created an opportunity for you to operate as a family. So I think it's a very happy story, very inspiring story. And I think this is time for us to open the forum for people to ask their questions if they have any.